تھی وہ یہ تھی کہ آج کے دن امت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آج کے دن میں نے دین، اس کا مطلب اکملتو، یعنی کوئی چیز سلسلہ شروع ہوا تھا جس کو مکمل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اکملتو یعنی کسی چیز کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک تو تکمیل کا ذکر ہے کہ ایک کوئی چیز شروع ہوئی تھی، کسی کا آغاز ہوا تھا کسی چیز کا، اب اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تکمیل کس چیز کی ہے؟ دین کی، اسلام کی۔ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں اپنی بھیجتے تھے، اور وہ نعمت جو ہے وہ بھی انسانوں کے اوپر تمام ہوئی۔ تو اب دین تو ہو گیا اسلام، اور نعمت آپ کی نظر میں کیا چیز تھی؟ کیا کس نعمت کا یہاں پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ جو نعمت تمام ہوئی ہے اس سے مراد آپ کیا لیتے ہیں؟ جزاک اللہ جی، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جی دیکھیں، میں نے تو اتنے پیار سے آیت کا حوالہ دے کے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو امت والا دوبارہ کہتا ہوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی، اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہ ان کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر کسی شریعت والے نبی کی امت میں نبی آ جائے تو ان کا دائرہ، ان کا پیغام وہی ہوتا ہے جو شریعت والا نبی لے کے آتا ہے، اس میں وہ تبدیلی نہیں کیا کرتے۔ تو اگر نبی کی صدقہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے تمام انسانوں کے لیے مکمل دین ہے، تو انہوں نے یہی دین لے کے چلنا ہے۔ آپ کہتی ہیں نعمت، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں نعوذ باللہ نبی کی یہ سوچا یا یہ فرمایا کہ مجھے یہ نبی والی جو نعمت ہے یہ اپنی امت کے لیے پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ بہت اور مبشر آتا ہے، خوشخبریاں لے کے آتا ہے، وہ امت کو فائدہ دینے کے لیے آتا ہے، کوئی نقصان دینے کے لیے تو نہیں آتا کہ اللہ نبی کی نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ اب امتی نبی آ جائے گا تو میری امت کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا میں اعلان کر دوں کہ اب کسی قسم کو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دینے کے لیے آئے تھے، کچھ انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے، نہ کہ لینے کے لیے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ انعام کہہ رہا ہے اس کو نبی کی فرمائے کہ نہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس اختلاف کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ اختیار دے دیا کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی کیونکہ یہ یہاں پہ اختلاف ہو گیا اس لیے مجھے یہ حق مل گیا کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اختیار اللہ کا ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو مجھے کوئی آیت بتا دیں، اگر نہیں دیا تو آپ کا اجماع جو کہ خدا بن بیٹھا اس کو پھر قرآن کا کیا فہم ہے؟ سادی سی بات ہے، مجھے بتا دیں کہ کس آیت سے آپ لوگوں کو یہ اختیار مل گیا ہے۔ شکریہ۔ دیکھیں، میں بار بار آپ سے سوال کر رہی ہوں، لیکن چلے اگر آپ اس کا جواب دینا نہیں چاہتے تو آپ نے جو آیت مبارکہ پیش کی ہے میں اسی میں ہی آپ کو آپ کا جواب دے دیتی ہوں۔ جی، سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 آپ نے پیش کی ہے۔ ایک سیکنڈ جی، مجھے نکال لینے دیں۔ اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگے گا، اس پہ تھوڑا مطلب وہ رکھیے گا کہ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اور بے شک نازل کیا ہم نے تورات کو، اس میں ہدایت
ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। जी जी यार उमर बाप साहबा चलेंगी फिर, या उनका सिग्नल का कोई मसला हो गया। अच्छा फारी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਇਜਮਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢੇ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਖਤਿਆਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਆਇਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਮਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬਣ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਤੋਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਇਜਮਾ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਇਜਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਜਮਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਜਮਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਭਜਵਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 1974 ਚ ਇਜਮਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੁਫਤੀਆਨ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤ ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤੁਲ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ। ਅਹਿਲ ਸੁਨਨਤੁਲ ਜਮਾਤ ਉਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਕਾ ਅਬਾਸੀਆ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅਬਾਸੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੁਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਨਾਸਲ ਜਮਾਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜੋ 74 ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ। ਹਾਂਜੀ अच्छा हुसैनी साहब, इतने एक सवाल पैदा हो गया है। जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत है जी, सवाल रख सकते हैं? जी बिस्मिल्लाह, जरूर। भट्ट साहब ने जी फरमाया सॉरी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था फोन, कोई नेट का इशू था तो जी। एक मिनट सिस्टर। ये भट्ट साहब अभी कह रहे हैं कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे को गैर मुस्लिम करार दे सके। ये बात मैंने सही सुनी है हुसैनी साहब? जी बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि अगर कोई फिर अपना ये हक इस्तेमाल जिसको हक ही नहीं है, वो ये जब कोई ना हक बात ऐसी करेगा, जाहिर है ना ही कहेंगे उसे। जी तो फिर बताएंगे उस सूरत में इस्लाम में वो बंदा किधर खड़ा होता है जो इस तरह से किसी को काफिर कहे, तो उसका क्या हाल होता है, फिर उसको क्या कहना चाहिए, ये बता दें। जी काफिर, मैंने काफिर की बात नहीं की, मैंने कहा कि इस्लाम से नहीं, गैर मुस्लिम इस्लाम से निकालने की बात है ना। जी, गैर मुस्लिम जो फिर ऐसा कहे। हाँ जी, अगर वो कहता है और उसके पास कुरान की कोई दलील है तो ठीक है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई कुरान से मुझे दलील दे दे। अब जो भट्ट साहब, जब आप कह रहे हैं हक ही कोई नहीं है, मैं आपके साथ एग्री कर गया हूँ, हमने एग्री कर लिया, मैंने, आपने और हुसैनी साहब ने, हमने एग्री कर लिया इस बात के ऊपर कि भाई किसी को हक हासिल नहीं है, ठीक हो गया। अब अगर कोई शख्स किसी दूसरे को गैर मुस्लिम कहे तो फिर उस शख्स के लिए क्या हुक्म है, ये बता दें सिर्फ। हाँ जी, वो शख्स, हाँ जी, अगर वो शख्स कुरान से दलील बना के कहता है तो बिल्कुल ठीक कहता है। हद हो गई। हाँ जी। अच्छा, ये वैसे हुसैनी साहब, ये जो मख्फी
ये जो मख्फी शिक थी हाँ ये जी, अब निकल के आई है बाहर सवाल के नतीजे में। हाँ, वो इसलिए क्या ख्याल है? मैं बताता हूँ। मतलब इसका मतलब कुरान शरीफ में है किसी जगह का हाँ जी, कहने को सैनी साहब देखिए हाँ, बात ही इसका है। मतलब है, हाँ जी, इसका मतलब है कि जो पहले वाला जुमला है वो कि ठीक किसी को नहीं है। हक हासिल नहीं, या तो वो गलत है हाँ जी, या ये फिर गलत। ये जुमला गलत है। दोनों में से गलत कौन सा है वो बता दें। हाँ जी, हाँ जी। ये सिर्फ अल्लाह को हक हासिल है, और अगर अल्लाह अल्लाह कह दे कि जो लोग ये चाहते हैं कि बाज़ अंबिया या रसूलों को तो माने, बाज़ का इनकार कर दें, ये अल्लाह का फतवा है, वो पक्के काफिर हैं। अब ये फतवा अल्लाह का मौजूद है कुरान में, इसको निकाल के दिखा दें। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर उस शख्स को क्या कहेंगे जो ऐसा करे कि बाज को माने और बाज को ना माने, उसको क्या कहेंगे? जरा बट साहब बताएं ना। जो बास को मानता है, बास का इनकार करता है, वो वही फतवा है जो मैंने आपको सुना दिया है, पक्का काफिर। और मैं क्या कहूँ क्या आपको? उसको क्या कहेंगे? ये मैंने कह तो दिया भाई, तो अल्लाह का आपने फतवा इसका सुना मतलब दे। है, हाँ जी, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मोहतरम अजीम भट्ट साहब को ये हक हासिल है कि वो कुरान मजीद की किसी आयत से किसी दूसरे शख्स को जो कि बाज़ को मानता है बाज़ को नहीं मानता, पक्का काफिर यानी दायरा इस्लाम से खारिज करार दे सकता है, तो फिर जो असम्बली में बैठे हुए थे उनको हक हासिल क्यों नहीं था? इसका जवाब दे दें। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे है कि बाज अंबिया का इनकार, मैंने बार बार उनसे पूछा है, जो ये आई थी अपना उमर बाद साहबा, कि अब एक आयत के फहम में मेरे और आप में इख्तिलाफ हो गया, ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर नबूवत जारी रहे तो वो उम्मत में नबी आने को नहीं रोकती, ये भी आप दलील कहते हैं रोक। इस ये वजह दूसरी से बात वही है आपको अभी। कहां से इख्तियार मिल गया कि आप कहें जी आप इस्लाम से बाहर हो? ये मैंने पूछा था उनसे, आपने पूरी बात शायद नहीं सुनी। नहीं, वो तो बात हमने एग्री कर ली ना। पहले मैंने इसीलिए सारे फैक्ट्स एस्टेब्लिश करवाए थे ताकि आप बाद में यू टर्न लेने का रास्ता में रोक दो, वो रुक चुका है। हाँ जी, अब सवाल ये पैदा हो गया है कि जब भट्ट साहब आपने आयत पेश कर दी, मैंने तो आपसे आयत भी नहीं पूछी, मैंने कहा ठीक है जी भट्ट साहब का असूल टेस्ट करते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं किसी को हक हासिल नहीं है, फिर मैंने जब आपसे पूछा है कि तो आपने फिर बयान किया है कि भी कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि जो बाज़ को माने और बाज़ को ना माने वो पक्के काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मैंने पूछा कौन लोग हैं वो? आपने कहा वो काफिर है, पक्के काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज है। तो आपने कह दिया। अब आपको आपके मुताबिक या तो ये हक हासिल नहीं था, तो आपने ये बात की, तो इसका मतलब है कि आपने भी वही काम किया जो 1974 वालों ने किया, तो आप और वो दोनों ही कटहरे में खड़े हैं। या फिर आप ये कहें कि आपको भी हक हासिल है और 1974 वालों को भी हक हासिल था। किसी एक तरफ तो आए ना, ये तो नहीं ना कि आप कही जाएं, आपकी बात मानी जाए और 1974 वालों को आप जो है वो बुरा भला कहते जी जी रहे। वो एक तरफ है ना। जी जी वो मुफ्ती मुबशर शाह साहब फरमाते हैं दो रंगी छोड़ दे, हाँ जी, या करंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। जवाब दीजिएगा। जी काजवी साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। सवाल मेरा बिल्कुल वाजिया था कि अगर किसी आयत के फहम में इख्तलाफ हो जाए वो और बात है, एक नबी का कुलियतन इनकार कर देना और बात है। यानी कि मैं अब आपको 2 घंटे ये बात समझाऊं कि इस बात में क्या फर्क है? क्या आप समझ रहे हैं? मेरा रमजान है कि मैं आपको बैठ के 2 घंटे समझाता रहा हूं कि यार इस बात में क्या फर्क है कि एक आयत के फहम में इख्तलाफ हो जाना और एक नबी का कुलियतन इनकार कर देना, और अल्लाह का फतवा वहां पे मौजूद है। अब मैं इसमें क्या बहस करूं आपसे, बताएं मुझे। हाँ जी, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जब अल्लाह ने कुरान शरीफ में वो निशानियां बता दी कि जिसको मान के एक शख्स मोमिन होता है और जिसको ना मानने की बिना पर वो गैर मुस्लिम करार पाता है, तो जब हम कुरान से ये बात करते हैं तो उस वक्त आप कहते हैं हमें हक हासिल नहीं है। चलिए, लेकिन आपकी बारी आती है, मेरी बात पूरी सुन लें, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप तमाम तर असूल तोड़ देते हैं। आप कहते हैं नहीं, आप बात घुमा रहे हैं, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? फिर भाई अच्छा। आपने जब कुरान की आयत पेश करके उस शख्स को जिसने बाज को माना और बाज का इनकार किया उसको काफिर का फतवा आपने दे दिया, तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं कि किसी को हक हासिल नहीं है? जी जी या तो आप कहें कि भट्ट साहब आपने खुद को खुदा बना लिया है, जैसे आपने इजमा को खुदा कहा था ना आपने, जी जी इजमा को आपने खुदा बनाया था। तो मैं कहता हूँ भट्ट साहब आपने खुद को खुदा बना लिया है। जी 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 अब जी बताएं इसमें इस मसले में क्या करना है?
हाँ जी दें जवाब। देखिए, वो खुदा ने खुद फतवा दिया हुआ है। मैंने कहा कि आपने फतवा वो बताए कि अल्लाह ने ये कहा हो कि किसी आयत के फहम में इख्तलाफ हो जाए तो फिर एक को हक हासिल है कि वो दूसरे को कि वो इस्लाम से बाहर है। वो फतवा तो अल्लाह ताला का, यहाँ तो कि अल्लाह ताला ने फतवा उस तरह नहीं दिया। आप उस फतवे को और तरह समझते हैं, फिर हम बात कर लेते हैं। अगर आप भी उस फतवे देखें को बट की तरह साहब, समझ ये रहे है कि हैं यार, एक आप मिनट बात सुनो। मुसलसल असूल बदलते जा रहे हैं, मुसलसल असूल। चलो पहला ठीक आपका है, असूल था, मैं याद बयानी करवा दूं। बट साहब सुने, बात सुने, जाना नहीं प्लीज, इज्जत और एहतराम से बात सुने। पहले आपने ये बात कही कि इजमा को खुदा बनाया हुआ है और ऐसे और वैसे, वो बातें आप कर रहे थे। आपने कहा कि किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी दूसरे को गैर मुस्लिम करार दे। ये आपकी पहली स्टेटमेंट थी, मैंने आपसे एग्री करवाया। जो ही मैंने कहा कि अच्छा फिर ये बताएं कि जो शख्स ऐसा करे उस पर क्या हुक्म आता है, तो फिर आपने उसके अंदर एक शिक का इजाफा किया। आपने फरमाया कि अगर तो उसके पास कोई कुरान की आयत है, कोई दलील है, तो उस बुनियाद पर अगर वो किसी दूसरे को कहता है तो ये जायज़ है। हालांकि ये बात आपकी पिछली बात के साथ पहले मशरूत नहीं थी, आपने बाद में ये बात मशरूत कर ली। फिर जब मैंने आपसे ये पूछा कि अब ये बता दें भट्ट साहब कि आप उन लोगों को, आपने खुद ही आयत पेश की कि जो बाज़ को मानते हैं बाज़ को नहीं मानते, अल्लाह ने फैसला फरमाया कि वो पक्के काफिर दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं आपसे एग्री कर गया। अब ये जो आपने कह दिया है उस शख्स को पक्का काफिर दायरा इस्लाम से खारिज, अब इस बुनियाद के ऊपर ये आपने दूसरी शिक इसमें मशरूत कर दी है। इस बिना के ऊपर सवाल तो ये पैदा होता है कि अब जिसने काफिर कहा है कुरान मजीद के फतवे के मुताबिक, उनको आप जायज़ समझते हैं या नहीं जायज़ समझते? इसका जवाब दे दें, हाँ या ना में। अपना काजी साहब, आपने बीच में आके छलांग लगाई है। बात ये हुई थी कि भाई एक आयत के फहम में इख्तलाफ हो गया, ठीक है। इख्तलाफ होने की, देखिए नबी का इनकार करना वो और बात है, एक आयत के फहम में इख्तलाफ हो जाना वो और बात है। मेरा इख्तलाफ आपके साथ किसी भी आयत पे हो सकता है, और मुसलमानों के जो मुहद्दिसीन है, जो क्या कहते हैं, जिन्होंने तफसीर लिखी है, उन्होंने एक दूसरे से इख्तलाफ किया है। तो इसी तरह मेरा भी इख्तलाफ है आपसे कि भाई नबूवत जारी रहे। कुरान में ये मिसाल मौजूद है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो नबी आने को वो चीज़ नहीं रोकती नबूवत का जारी होना, और उसके अगर आ जाए तो नबूवत खत्म ही नहीं होती, वो फिर भी जारी रहती है। ठीक है, पर मैं भाई ये मैं 5 मिनट में अपनी बात दोहरा चुका हूँ। कुफ्र व इस्लाम पर रहे, अभी खत्म नबूवत की तरफ ना जाएं, पहले हम असूल मेयार वाज़ेह मैं कर कह रहा लें। हूँ जो बात चल रही थी वो समझा रहा हूँ आपको कि बात कहाँ से चल रही थी, तो कहाँ। मोहतरम बात तो सुन लें यार भट्ट साहब देखें, मेरी बात सुने। देखिए, आपने जो कहा ना कि आपने असूल बदला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भी असूल आपने दो तीन बदला। जो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, आपने असूल में तरामीम की हैं। वो पहले एक शिक नहीं थी, आपने शिकें ऐड की हैं। मैंने कब कहा आपने बदला? तरमीम करने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं होता, बदलने में और तरमीम करने में कोई फर्क नहीं होता। नहीं, कोई फर्क नहीं होता, पक्की बात है। इस पर कायम रहेंगे अगले सवाल के बाद। हाँ जी, बताएं अच्छा, मुझे। अब इधर रुक जाएं। ले जी, भट्ट साहब ने, सारे सुन लें, भट्ट साहब ने यह फैसला फरमाया है कि किसी चीज में कोई चीज ऐड करने में और उसको बदलने में कोई फर्क नहीं होता। इसका मतलब भट्ट साहब आपने अपना पहला असूल बदल दिया। क्या मतलब पहला असूल बदल दिया? भाई अगर मैं उसमें तरमीम करता हूँ तो मतलब ये है कि जो मौकफ पहले मैं दे रहा था वो मौकफ वो नहीं है, इसमें इस चीज का तो मैं कह रहा हूँ ये, हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि पहले आपने इतना फरमाया सिर्फ कि भाई किसी को भी, आपने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी, आपने कहा किसी को हक हासिल नहीं कि वो किसी को काफिर कहे या दायरा इस्लाम से खारिज करे। ये आपकी पहली स्टेटमेंट थी। यार इस स्टेटमेंट की बुनियाद वो बहस थी जो जारी थी, वो आपने सुनी कोई नहीं, तो आप आगे बीच में छलांग मारी आपने, इसलिए नहीं मैंने सुनी। ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। तो फिर आप वो भी बयान करें ना, साथ वो बयान। यार चले, मेरी बात सुनो, आप किसी और से बहस कर रहे हैं यार, मैं मुझे माफ करें, ठीक है ना। मैं नहीं भट्ट साहब ऐसे ना करें, भट्ट साहब ऐसे ना करें। आपने अपने असूल, आपने खुद ही कहा, मैंने कहा तरमीम की, आपने कहा नहीं आपने बदला, तो अब कम से कम इतनी खिलाफ यार अगर आपको पता है कि भाई बुनियाद क्या आप कहें हाँ जी मैंने बदल लिया, पहले मैंने बात पूरी नहीं बताई थी, मैंने बात पूरी बता दी। मेरा अगला सवाल मैंने करना बड़ा जरूरी है, इस पे एग्री करें जाके मैं आगे चलूं, ताकि बाद में बदल ना सके बात को। अच्छा चले, मैं फिर अपना बात पूरी कर देता। पॉइंट रख लीजिए प्लीज।
हाँ जी, मिनट लगा अच्छा दे। चलें जी, अब मैं पॉइंट रखने लगा हूँ। अब हाँ मैं जी, एक पॉइंट मिनट रखने लगा हूँ। मैं अपनी मैं लगाता हूँ मिनट। मैं अपनी बात वाज़ेह कर दूं दोबारा, फिर आप अपना चलें पॉइंट जी, लगाएं जी, मेरा और भट्ट साहब को 2-2 मिनट लगा दें जी। नहीं, लगाएं एक भट्ट साहब, मिनट पहली एक बारी। मिनट काफी यार, ये कौन सा मौजूद है, एक मिनट काफी है, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 मिनट ही ठीक है। नहीं नहीं, भट्ट 2 साहब मिनट, पहले मुझे आपका 2 मिनट टाइम चाहिए लगा दें। होते हैं। आप मुख्तसर ठीक है, जामे कर सकते हैं ठीक है। बात, मैं जरा का मिल बंदा हूँ तो मुझे टाइम जरा ठीक ज्यादा है, पहले चाहिए भट्ट होता है। साहब का, पहले भट्ट हाँ, साहब भट्ट साहब का टाइम। दावा है, भट्ट साहब को टाइम दे जी, भट्ट साहब ने दावा हाँ किया जी, हाँ जी, करें जी। हाँ जी। बात ये यहाँ से शुरू हुई थी और वो अभी मैं उस बात पे कायम हूँ कि जो ये कहता है कि आयत में उसकी समझ बूझ में इख्तलाफ की वजह से मुझे ये हक मिल गया है कि मैं किसी को कहूँ कि वो मुसलमान नहीं रहा, उसने वो आयत मुझे बतानी है। और जो मेरा अकीदा ये है कि अगर कोई ये कहे कि एक ही नबी को तो मैं मानता हूँ और दूसरे का इनकार करता हूँ, कुरान में वाज़ेह आयत मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह का फतवा है, मैं तो दे ही नहीं रहा, कि वो काफिर है, पक्का काफिर है, अल्लाह ताला ने फरमाया। तो जो ये कहता है कि किसी आयत के फहम की वजह से मैं किसी को इस्लाम से बाहर निकाल दूं, भी फिर उसने आयत लेके आनी है ना। मैंने तो जो अकीदा रखा है वो मैंने उसके लिए आयत बता दी। शुक्रिया, करे बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे 2 मिनट लगाएं शान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन गौर से सुननी है, ये डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि देने के दाम और लेने के दाम और, अहमदियों के फतवे दिखाने के और लगाने के और, ये भी साबित होगा यहाँ पे। कैसे साबित होगा? ऐसे साबित होगा कि इन्होंने अपने असूल में तरामीम की। अब जब तरामीम इन्होंने कर दी हैं अपने असूलों में, तो उसके बाद अब ये बात इन्होंने अभी यहाँ पर कही है कि भाई आपका फहम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ के इनकार को और बाज़ के मानने को कहा। ये तो अल्लाह ने आपको वहां पर बताई बात, क्राइटेरिया दिया, लेकिन फैसला आपने किया। भट्ट साहब, फैसला करने वाले आप थे जब आपने अपने मुंह से ये अल्फाज अदा किए कि इजमा को खुदा बनाया हुआ है। ये फैसला आपने किया, ये कुरान में बात नहीं लिखी हुई थी, ये आपने फैसला किया। किस बुनियाद पे? कुरान की आयत की बुनियाद पे। और आपने कहा पक्के काफिर है। सवाल सिर्फ सादा सा है, आपने कहा फहम में इख्तलाफ। अब एक शख्स है वो पढ़ता है कुल हु अल्लाहु अहद, कि अल्लाह ताला अहद है, एक है, उसका ये फहम वो लेता है। दूसरा शख्स है वो कहता है कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ता है और कहता है कि अल्लाह ताला एक नहीं है, अल्लाह ताला एक से ज्यादा है, 3 में से 1 है या 1 में से 3 है या तीनों को मिला के 1 बनता है। मुझे बताएं, इन दोनों फहम के अंदर आप किसको सही कहेंगे और किसको काफिर कहेंगे, किसको दायरा इस्लाम से खारिज करेंगे? फहम की बुनियाद पे वो आपने कहनी है बात, इसका जवाब देना मुझे। शुक्रिया, दें मौका जी भट्ट साहब को। जी देखें, जब मैंने फहम की बात की तो मैं फहम अपना बता चुका था। आपने अब कहा कि जो उसके भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि जो तौहीद को नहीं मानता उसको भी अल्लाह ताला ने काफिर कहा है, ठीक है। अल्लाह ताला का आपने बताना है कि देखें, अल्लाह ताला उस बंदे को जो ये कह रहा है कि अगर नबूवत जारी रहे और उसमें अंबिया आ सकते हैं, नबूवत के जारी रहना नबी के आने को नहीं रोकता, इसको अल्लाह ताला ने कहीं पे भी तनकीद का निशाना बनाया है। वो आयत मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो आयत पेश करें कि अल्लाह ताला ने कहा हो कि वो काफिर है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। वो आयत ही तो मैं मांग रहा हूँ भाई, वो आप दे दें तो मसला हल हो जाता है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भट्ट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम तर ईमानियात के मामलों में ये बात की जाए। हालांकि हमें पता है कुरान मजीद का एक लफ्ज भी जो ना माने और बाकी तमाम लफ्ज माने, वो भी पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। जो एक आयत का भी इनकार कर दे, ये है कुल्ली तौर पर एक अमूमी असूल जिसकी बुनियाद पर ये गुफ्तगू चल रही है। ये कहते हैं हमें एक आयत ऐसी बना के दिखाओ कुरान मजीद में जहां पर लिखा हो ये कि जो खत्म नबूवत का इनकार करेगा वो काफिर है। तो फिर तो मैं भट्ट साहब आपसे सवाल करता हूं, जो फरिश्तों का इनकार करे, आप मुझे कुरान से आयत दिखा दें एक सिर्फ जहां पर यह लिखा हो कि फरिश्तों का इनकार करने वाला बंदा काफिर है, या फिर आप जो फरिश्तों का इनकार करता है उसको काफिर नहीं मानते क्योंकि कुरान में नहीं लिखा हुआ। ये वाज़ेह कर दें जी। देखें, उस पे कुफर का फतवा लगेगा कि वो इनकार करता है, लेकिन उस पे ये फतवा नहीं मैं लगा सकता कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, जबकि उसका दावा है कि वो मुसलमान है। ये अल्लाह ताला ने फतवा लगाना है, मैंने नहीं लगाना। यहाँ फतवा लगेगा नबी का, नबी की वसल्लम ने खुद फतवा दे दिया हुआ है, ठीक है। एक फतवा उनमें ये है कि जो किसी दूसरे को कहे कि वो काफिर है, वो खुद काफिर हो जाता है, ठीक है। तो बात ये है कि ये फतवे अल्लाह ताला के लगेंगे या नबी की वसल्लम के लगेंगे, और जो अल्लाह ताला का फतवा है वो मैंने आपको सुना दिया।
اب جو آپ فتویٰ لگا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے وہ آپ بتا نہیں پا رہے. تو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا کہ بھائی میں اس کفر کا فتویٰ تو لگاؤں گا کہ اس نے انکار کیا ہے قرآن کے ایک حصے کا یا ایک عقیدے کا، جو بھی آپ کہہ لیں، لیکن اس میں یہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا اب یہ وہ مسلمان نہیں رہا. وہ اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا سکتا ہے یا شریعت والا نبی لگا سکتا ہے. شکریہ. بٹ صاحب آپ کی باتوں میں تضاد پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تضاد یہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے یہ بات مان لی کہ جو قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرے گا وہ بندہ کافر ہو جائے گا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے اولئک هم الکافرون جو آپ نے آیت پیش کی سورہ النساء کی، کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، پکے کافر ہیں. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی جو شخص ملائکہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر تو ہو جاتا ہے لیکن وہ غیر مسلم نہیں ہوتا. یہ آپ کا عجیب منطق ہے بٹ صاحب، کہ ایک شخص قرآن کی واضح آیت کا انکار کر رہا ہے، ایمانیات کے جز کا انکار کر رہا ہے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. چلیں آپ سے سوال کرتے ہیں، سامعین اس سوال کا جواب آپ نے دیکھنا ہے، غور سے سننا ہے. سوال نمبر 1 ہے جی بٹ صاحب، یہیں پہ فیصلہ ہو جانا ہے. سوال غور سے سنیے گا. کیا آپ مسیلمہ کذاب کو جو جھوٹا مدعی نبوت تھا، کیا آپ اس کو جھوٹا مدعی نبوت مانتے ہیں؟ نمبر 1. دوسرا، کیا آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. جی بات یہ ہے کہ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا نہیں سمجھتا تھا، میری اس پر کوئی تحقیق نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بار بار آپ کے لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بھئی اللہ کے حضور حاضر ہو کر میں نے اپنا جو حساب کتاب ہے وہ تاریخی کتب کے ذریعے نہیں دینا، میں نے قرآن کے ذریعے دینا ہے. تو میں قرآن سے بھئی آپ سے ایک آیت مانگ رہا ہوں کہ ختم النبوت کی آیت جو ہے خاتم النبیین کی، اس کی فہم میں اختلاف ہو گیا یا کسی اور آیت میں بھی ہو جاتا ہے، وہ تو مفسرین نے بھی اختلاف کیا نا. اگر یہ اصول بنا دیا جائے کہ اختلاف کی وجہ سے ہر کوئی دار اسلام سے خارج ہوتا ہے، پھر تمام مفسرین پھر ایک دوسرے کو دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں. تو آپ آیت بتائیں کہ آپ کے اجماع کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ آیت کے فہم میں اختلاف کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہوتا ہے کوئی ختم النبوت کے، خاص طور پر ختم النبوت میں. جی اچھا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکوں، میرے خیال کافی بات واضح ہو چکی ہے. تو روزہ کھولنے کا قریب ٹائم ہو رہا ہے، تو 10 شاید 10 منٹ بھی نہیں رہ گئے ہوں گے، کم ہی ہے. عظیم صاحب آپ کہاں پر ہوتے ہیں جو روزہ کھل رہا ہے؟ جرمنی. بھائی ٹائم تھوڑا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اب ہاں جی، اب میرا خیال ہے کافی بات ہو چکی، اجازت دیں. بس آخری مجھے موقع دیں. نہیں اجازت نہیں، موقع یار روزہ کھولنا بھائی، میں نے صرف 10 منٹ، میں آپ کی بات سن لوں گا، ٹھیک ہے نا. میں نے روزہ کھولنا لگ گیا ہوگا صرف 10 منٹ صاحب، ایسے نہ بٹ صاحب یار، پھر ہو جائے گی بات. میں میں کیا پھر یہ حق دے دیا بٹ صاحب نے غیر مسلم قرار دینے کا، یا ابھی نہیں وہ آدھا دے رہے ہیں آدھا نہیں دے رہے. کہتے ہیں کافر تو ہو سکتا ہے غیر مسلم نہیں ہو سکتا. یہ مطلب آدھا دے رہے ہیں، آدھا دے دیا. اچھا منٹ اب ابھی 15 منٹ ڈسکشن اور کریں گے انشاءاللہ، میں پورا بھی لے لوں گا. ہاں اجازت دے، منٹ ایک دو. نہیں بٹ صاحب اجازت نہیں. یار روزہ کھولنا میں اللہ کی مانوں گا کہ آپ کی مانوں گا؟ بتائیں. السلام علیکم. ہاں نہیں یہ بات تو ہے بٹ صاحب. نہیں حسینی بھائی، آپ بھی برابر کے قصوروار ہوئے نا. آپ نے تو حامی بری، آپ نے کہا قرآن میں کہیں نہیں ہے. اس چیز کی حامی بری. کاظمی صاحب جو اللہ کو گالیاں دے وہ کافر ہے یا لانتی ہے؟ وہ جی اسلام سے حسینی صاحب یہ کاظمی صاحب سے پوچھے ہیں، کاظمی صاحب سے